ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ملازمت حاصل کی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے دن رات دفتروں کے چکر لگانے پڑے، تب کہیں جا کر مجھے ملازمت حاصل ہوئی۔ میرے والدین بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ میں اپنے تایا کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے تایا نے مجھے پڑھایا، لکھایا اور میری پرورش کی۔ میرا نام عمیر ہے اور میرے تایا اپنی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ کرانا چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے تایا نے مجھے پالا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا اور وہیں پر رہنے لگا، کیونکہ میرے تایا کے گھر میں ان کی بیٹی تھی اور تایا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے تھے۔ وہ زیادہ موٹی تھی، اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تمہاری اپنی مرضی ہے کہا، اور لیکن میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی اسی لیے انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہو کہ تم ان کے سامنے بڑے ہوتے، بچے تھے، دیکھے بھالے تھے ان کے اپنے، اور تم نے ان کا انکار کر کے دل توڑ دیا۔ انہیں یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن ایسا لگتا نہیں تھا، کیونکہ میرے تایا نے پھر خود میرے لیے لڑکی تلاش کی اور اس کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں فوراً مان گیا اور میں نے کہا کہ میں شادی ہونے تک اس عرصے میں کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ میں اپنی نوکری پر تھا، اس لیے شادیوں کی تیاریوں کے پیسے تو میں نے دے دیے تھے تایا کو، لیکن انتظام کرنے کے لیے میرے تایا تھے۔ سب کچھ وہ کر رہے تھے۔ میری بیوی کے والدین میں صرف اس کے والد تھے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق لڑکی کو بہت اچھا سامان وغیرہ لے کر دیا اور اس کے کپڑے جوتے جو آج کل کے مطابق ہوتے تھے، اور مہرون اور سکن کلر کے امتزاج میں لہنگا تھا جو میں نے خود جا کر اپنی مرضی سے شاپ سے پسند کیا تھا، اور اس کی میچنگ کی جولری بھی شاپ سے لایا تھا۔ ہم لوگوں نے سب کچھ سادگی سے کیا۔ نکاح ہوا، میں نے بھی میچنگ کلر کا کلا پہنا اور اچھے ڈیزائن کی شیروانی پہنی۔ میں بہت خوش تھا کہ ماں باپ کے بغیر بڑا ہوا اور اللہ کی مہربانی اور تایا کی مدد سے شادی کے قابل بن سکا۔ نکاح زیادہ دھوم دھام سے نہیں یہ کر رہے تھے، صرف کچھ معمولی سی رسمات ہوئی تھی اور قریبی لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ پہلے میں اپنی بیوی کو تایا کے گھر لایا، پھر ادھر آ کر میں نے اس کو اپنے گھر لے آیا کہ میری بیوی جب گھر آئی اور جب اس نے دیکھا تو وہ بہت پیاری اور کم عمر لڑکی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ زندگی شروع کر کے بہت خوشی ہوئی۔ سہاگ رات میں نے مجھے اچھی بیوی مل گئی تھی، مگر سامیہ چپ رہی۔ میں نے اس کو شرم و حیا سمجھا، مگر ہمارا 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ کیونکہ میں اتنا بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے گھر کافی تنگ اور بہت گھٹن والا تھا۔ اوپر والی چھت کھلی تھی، یعنی 2 کمروں کے اوپر پوری چھت پر کوئی اور کمرہ نہیں۔ جب ہم رات کا کھانا کھا لیتے تو میری بیوی مجھے کہتی کہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب ہمارے سونے کا ٹائم ہے۔ جب سونے کا ٹائم کہنے لگتے تو لائٹ چلی جاتی تھی، وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے۔ گرمی کے موسم میں بند کمرے میں ایسا لگتا تھا کہ جان نکل رہی ہے، اس لیے ایئر کولر میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی گرمی میں ایک بندے کے ساتھ ویسے بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے کہا کہ چھت پر جا کر سوتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بات شادی کے 2 ہفتے بعد کی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں بولی تھی، اس نے یہ سب برداشت کیا تھا۔ ایک نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے سوچتی ہوگی کہ میں ایسی بات کوئی بھی نہ کروں تو میرا دلہا سوچے گا کہ میں نخرے کر رہی ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ہمیں چھت پر جانا چاہیے۔ ہم چھت پر جا کر سو گئے۔ اوپر واقعی موسم بہت اچھا تھا، بنا پنکھے کے بہت اچھی ہوا چل رہی تھی۔ برسات کے مہینے میں بھی یہی ہوتا ہے، کھلی ہوا میں موسم بہتر محسوس ہوتا ہے اور اندر حبس ہوتا ہے۔ اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو سامیہ میرے پہلو میں نہیں تھی۔ آس پاس دیکھا تو وہ بالکل نظر نہیں آئی۔ پھر میں جلدی سے نیچے آیا تو نہا دھو کر وہ بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھلے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی ہو؟ رات بہت گرمی تھی، اس لیے میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی، اس لیے نہا لیا ہے، جبکہ رات کو موسم بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا تو وہ بولی کہ صبح آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے۔ سوچا تھا نیچے جا کر کمرے میں سو جاتی ہوں، لیکن پھر سوچا کہ اب جاگ گئی ہوں تو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہی کر لیتی ہوں۔ ناشتہ بھی تیار ہے۔ مجھے میری بیوی کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ سارے گھر کے کام کر کے خود کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنا کر رکھتی تھی۔ جب میں آفس سے گھر آتا تو تب اس کی یہی عادت ہوتی کہ وہ صاف ستھری بالکل تیار بیٹھی ہوتی۔ کھانا تیار ہوتا تھا، ورنہ عورتیں تو پورے دن کے کام کرتی ہیں۔ جب گھر آتا ہے شوہر تو انہوں نے اپنا سر باندھا ہوا ہوتا ہے، کبھی نہیں بدلتی۔ ان کے پاس سے مرچ مسالوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بات کر لو تو کہتی ہیں کہ سارا دن گھر کے کام کر کر کے انسان کی یہی حالت ہوتی ہے، اب تم کیا چاہتی ہو میں گھر کے کام بھی کروں اور پھر ہیروئن بن کے بیٹھ جاؤں؟ جبکہ عورت چاہے تو یہ دونوں کام کر سکتی ہے۔ اگر عورت ایسی ہو تو وہ کبھی بھی شوہر کے دل میں نہیں گھر کر پاتی اور نہ ہی شوہر کے دل سے اترتی ہے، کیونکہ شوہر کو تو ہمیشہ خوبصورت اور سجی سجائی بیوی ہی اچھی لگتی ہے۔ میری بیوی سامیہ ہر لحاظ سے اچھی تھی، لیکن کبھی چھوٹی چھوٹی لاپرواہی کر دیتی تھی، لیکن اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال کر مسکرا دیتی تھی۔ جیسے کہ کھانا بنانا اسے بالکل اچھا نہیں آتا تھا اور مجھے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی پسند نہیں آتا تھا، لیکن صبر کر کے کھا لیتا تھا۔
अगले दिन भी यही हुआ कि लाइट चली गई तो मेरी बीवी ने कहा कि चलें आएँ ऊपर चलते हैं। नीचे तो लाइट ही नहीं आ रही और नींद भी नहीं आ रही। आज मैंने उससे कहा कि लाइट आ जाएगी, फ़िक्र नहीं करो, लेकिन 1 घंटा गुज़र गया, लाइट नहीं आई। यहाँ तक कि दूसरा घंटा भी गुज़र गया, तीसरा शुरू हो गया, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैंने सामिया की बात मान ली। मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने उसकी नींद ख़राब की और ढाई घंटे तक उसको इंतज़ार करवाया। हम लोग छत पर चले गए, बिस्तर बिछाकर सो गए। सुबह हुई तो फिर से मेरी बीवी साथ नहीं थी। मैंने उससे कहा कि रात को कितनी देर से सोई थी। सुबह देर से उठ जाती, लेकिन वो कहने लगी नहीं, मुझे आदत हो गई है सुबह उठने की। वो थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो कहने लगी कि थोड़ी बहुत थकावट है। नाश्ता इसलिए नहीं किया मैंने कि उसने कहा कि कोई खुशखबरी तो नहीं? तो कहने लगी नहीं, ऐसी थोड़ी खुशखबरी होती है, कोई खुशखबरी नहीं है। अभी मैंने उससे कहा कि आजकल तो शादी के पहले महीने में लोग खुशखबरी सुना देते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जल्दी आ जाए और दूसरी औलाद को वक्फे के बाद ले आएंगे, ताकि तुम्हें भी आराम का वक्त मिले और अपने पहले बच्चे की ज़्यादा तवज्जो दे सकें। जब वो 4-5 साल का हो जाएगा तो हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मेरी बीवी को इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हाँ में सर हिला रही थी। हालांकि उसको तो खुश होना चाहिए था, मुझसे शर्माना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह का कोई तासुर नहीं दे रही थी। ये तो हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला लम्हा होता था। सबसे बड़ी खुशी होने वाली थी औलाद के बारे में सोचना और प्लान बनाना। हर कब्र का ख्वाब होता है। इंसान के लिए कुछ अल्लाह ने प्लान किया हुआ होता है, लेकिन इंसान तो सोचता है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी बीवी सामिया को किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बोला कि तुम कल भिंडी गोश्त बनाना, जो मुझे खूब बेहद पसंद है। कहने लगी इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, मगर बना दूंगी। दफ्तर से वापसी पे मैं बिरयानी खरीदी। अगर सालन ना ठीक बना तो कम से कम इजाफी डिश तो हो कि हम इकट्ठे चांदनी रात में छत पे खाना खा सकें। वो रात बड़ी हसीन थी। अगले दिन मैंने अपनी बीवी को मैके छोड़ दिया और उसे कहा कि आज शाम मुझे वक्त लेना है। जब मैं अपनी बीवी के घर के पास से गुजरा, मेरा एक दोस्त मेरे साथ था। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये तुम्हारी भाभी का घर है। तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि ये तो बाकिर साहब का घर है। मैंने कहा क्यों, तुम जानते हो उनको? तो कहने लगा हाँ, उनको जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। दरअसल इनकी जो बीवी थी बाकिर साहब की, वो तुम्हारी बीवी की माँ यानी तुम्हारी पिछली उम्र में किसी के साथ भाग गई थी। तुमने इनकी बेटी के साथ शादी की है। और मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया हूँ कि मैंने कहा उनकी बेटी तुम्हारी भाभी है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मेरे ताया ने मुझे इस बारे में नहीं बताया, मेरी बीवी ने भी नहीं बताया। लेकिन बीवी का ना बताना तो चले समझता हूँ। अपने ही दही को खट्टा कौन कहता है? वो नहीं बताना चाहती होगी कि कल को अगर मैं लड़ाई करूं तो उसे इस बात का ताना ना दो। लेकिन ताया को तो पता होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि इस बारे में तो सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। तुम्हारे ताया को ज़रूर बताना चाहिए था। यार कहीं तुमसे तो कुछ बुरा तो नहीं हो गया? तुम क्योंकि इनकी बेटी से शादी करने से तुमने इनकार किया था और अंकल के घर रिश्ता लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग तो अच्छे नहीं हैं। यार माफ़ करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ताया पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और दूसरा तुम्हारी बीवी के घर वालों के बारे में बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मोहल्लों में बातें आग की तरह फैलती हैं और जो भी बातें होती हैं झूठ होती हैं। अगर वो औरत भाग गई तो इसमें बाकियों का क्या कसूर है? मेरी बीवी के साथ मुझे रहते हुए 2 महीने हो गए। मैंने अपनी बीवी में इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी है। मैं उसे अकेले घर छोड़ के जाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी कोई हरकत मैंने अभी तक देखी नहीं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि आइंदा इस तरह की कोई बात मेरे सामने ना कहना, क्योंकि लोगों के लिए वो एक घर है मगर मेरी वो ससुराल है। मेरी तो वैसे इस दुनिया में कोई फैमिली नहीं है। मेरी बीवी के वालिद साहब मेरे लिए बाप की जगह हैं और उसने अगर कभी अपनी माँ का जिक्र नहीं किया, मुझे यही कहा कि उसकी माँ मर गई है, उसका मतलब है कि इस औरत के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। अगर एक औरत तलाक ले लेती है तो उसकी सज़ा बाकियों को क्यों मिले? मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अल्लाह सबके पर्दे रखे। हर किसी को कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। अगर वो नहीं बताना चाहता, लेकिन अचानक से मेरी बीवी मुझसे दूर दूर भागने लगी। वो मुझसे ऐसे दूर रहने लगी जैसे हमारी शादी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी हुई है और मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं उसे कहता कि मेरे पास आकर बैठो, वो किसी काम का बहाना कर देती, मुझसे दूर दूर रहती, जैसे मेरे पास आना उसकी ज़मीर पर बोझ था। वो दिल से राज़ी नहीं थी, जबकि ऐसी बातों की क्या तुक बनती है। हमारी शादी हो चुकी थी और हम घर में अकेले रहते थे। लोग तरसते हैं ज़िंदगी के लिए, ऐसी लोगों की शादी जायज़ है और वो किसी के सामने हाथ पकड़ सकते नहीं, मगर घर में ऐसा कोई मसला नहीं था। घर में हम एक दूसरे के साथ लगावट और रोमांस की बातें कर सकते थे, मगर पता नहीं क्यों वो सामिया मुझसे खफा खफा रहने लगी। आज दफ्तर जाने से पहले प्रोग्राम बनाया हुआ था, वापसी पर सामिया को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। इसलिए मैं बाजार से उसके लिए फूल लेकर आया और उसे कहा जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने कहा कि मुझसे जान नहीं जाया जाएगा क्योंकि मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा बाहर चलते हैं, तो इसने कहा कि आप जाएं। मैंने सोचा मेरे साथ अच्छी हुई है, ये सर का दर्द लेकर बैठ गई है। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, हो सकता है सर का दर्द ठीक हो जाए। तो उसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं जाएगी, जबकि मैंने सोचा कि इस अच्छी जगह पर खाना खाएंगे और फिल्म देखेंगे और इस दिन को वो खूबसूरत बनाना चाहता था मैं, कि हम घूमें फिरें एंजॉय करें।
अब तो उसने रोज़ ही रूटीन बना ली थी, एक दफ़ा काम का बहाना करके जाती तो 3-4 घंटे बाद वापस आती थी, इसलिए रात को हम लोग चुप रहते थे। लेकिन एक बड़ी अजीब-सी बात थी, मेरी बीवी हमेशा मुझसे पहले उठ जाती थी और नीचे आकर नहा धोकर बैठ जाती थी। उसे रोज़ नहाने की क्या ज़रूरत थी? कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था? क्योंकि मुझे एक ऐसी बात पता चली जब मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे दिल में एक अजीब-सा शक बैठ गया। वो बात ये थी कि मोहल्ले की मस्जिद में जुम्मे वाले दिन नमाज़ पढ़ने गया, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मोहल्ले वालों ने एक-दूसरे से रूटीन की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट बंद हो जाती है। वापडा वालों ने रात का टाइम बनाया हुआ है, इस टाइम टेबल पे सोना होता है। तो सब हैरान होकर देखने लगे कि भाई साहब, लें जी, आपको पता नहीं लाइट जब जब 10 बजे आती है, उसके बाद सुबह 6 बजे ही जाती है। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक तो बिजली जाती ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा रोज़ जाती है, पूरे टाइम पे जाती है, पूरे टाइम पे वापस आती है। हम लोग इतने परेशान हैं कि रात को छत पर सोते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है। आपके घर की बिजली में ही कोई मसला होगा। आप अपने मीटर का चेकअप कराएँ। मगर मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मेरे घर में कोई मसला है तो पूरे टाइम पर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है घर की कोई लाइट बंद कर देता था। मेरे अलावा तो मेरी बीवी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर की लाइट कोई बंद कर देता था? मेरे अलावा घर में जो मेरे साथ लेटी होती थी, वो ही हो सकती है फिर। फिर मैंने जो देखा कि हमारे घर के मीटर के बाहर की तरफ लगा हुआ था, घर के अंदर नहीं था। कुछ मीटर अंदर भी लगे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से मीटर की तार निकाल देता था। जब मैंने मीटर की तार को देखा तो वो थोड़ी ढीली थी, जैसे उसे आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन ये तो आजकल के हालात ऐसे थे कि बिजली वाले अपना काम ठीक से नहीं करते थे। सारे मीटरों की तारें लटकी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज लाइट चली गई तो मैं ऊपर जाकर नहीं सोना। मुझे खुली फिज़ा में नींद नहीं आती। बीवी बोली मुझे अच्छा लगता है। मगर आपको तो नींद अच्छी आती है, आप सोते में ज़रा भी नहीं हिलते। तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मुझे नींद अच्छी आती है? तुम रात को सो रही होती हो या मुझे देख रही होती हो? मैं बोला। तो वो थोड़ी-सी घबरा गई और उसने कहा नहीं, आप सुबह भी सुकून से सो रहे होते हैं, इसलिए कहा था। वो थोड़ी डर गई, उस पर गुस्सा कर दिया क्योंकि मेरी नींद अच्छी थी। लेकिन मुझे गड़बड़ लग रही थी। मेरे घर की लाइट बंद क्यों हो रही थी? कौन मेरे घर की लाइट बंद करता था? मेरा दोस्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था। मैं इस मसले को हल करना चाहता था। मैंने सामिया को इसके मैके भेज दिया और घर में कैमरे लगवा दिए। मैं देखना चाहता था, किसी को ना बताया। रात को फिर लाइट चली गई। हम सोने के लिए छत पर चले गए। वो रात को सुकून से गुजर गई। सुबह उठा तो बीवी नीचे थी, घर के काम कर रही थी। और मैंने वीडियो के सिलसिले में दोस्त के पास जाना था। उसने कॉल करके मुझे फ़ोन पर बताया और मुझे देखना था कि रात भर क्या हुआ था। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वीडियो के अंदर सब कुछ ऐसे मनाज़र थे कि जैसे हम लोग सोए ही नहीं। यानी टाइम पे हम कमरे में जाते और उसके 5 मिनट बाद वीडियो के मनाज़र थे कि किसी ने मीटर से तार निकाल दी। इस शख्स ने अपना चेहरा लपेटा हुआ था और वो उसके पास देख रहा था। और इसके बाद मनाज़र हैं कि जब हम लोग उठ के ऊपर गए, तो मैं क्यों आगे था, इसलिए मैंने पलट कर नहीं देखा और मेरी बीवी कुछ परेशान लग रही थी और इधर-उधर देख रही थी। फिर हुआ ये कि जब रात को हम लोग सो गए, तो मेरे सोने के बाद मेरी बीवी उठी, उसने मेरी तरफ देखा और नीचे आ गई। मेरे कमरे में जो आखिरी कैमरा लगाया हुआ था, उसमें मनाज़र कि मेरा खून खौलने लगा था। वही शख्स जिसने मीटर से तार निकाली थी, वो मेरी बीवी के साथ कमरे में था। वो मेरी बीवी की बाहों में था, उसके चेहरे पे नकाब उठा हुआ था, उसको नहीं जानता था मैं। उस पर शायद इसी मोहल्ले के कोई होगा। मुझे बहुत गुस्सा था। मेरी बीवी किसी और की बाहों में प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। शाम को उसका बाप छोड़ गया। ससुर के सामने मुझे नकली मुस्कुराहट सजानी पड़ी। जब रात उसको सामने बिठाया, उसको सारी वीडियो दिखाई, उसकी हालत ऐसे हो गई कि रंग उड़ गया। मैंने कहा तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी ऐसी निकली। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर किसी का गंदा खून है। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ पता था, तो फिर भी मैंने तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। क्या मेरे भरोसे का तुमने ये सिला दिया मुझे? मेरे सोने के बाद मुझसे हर रोज़ बेवफ़ाई करती थी। उसने बताया कि मेरे बाबा ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। मैं उससे मोहब्बत करती थी और आपसे शादी करना नहीं चाहती थी। शादी के वक़्त मुझे कबूल किया गया था। मैंने बोला और अपनी बीवी को उसके पास छोड़कर अपने कहा कि बाप को बता दे। उससे कुछ अरसे बाद तलाक दे दी। लेकिन मैं बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर सकता था, बेवफ़ाई नहीं कर सकता था। उसको गलती नहीं कहा जा सकता। हाँ, मुझे बहुत दुःख हुआ। उसी के साथ सिर्फ़ अपने आप की खुशी ख़त्म करने अपनी खेल खेलते रहे। इंसान के पास फिर इसके बाद क्या रह जाता है? मुझे इतना बड़ा तजुर्बा हुआ था कि मैंने शादी करने से तौबा कर ली। मुझे बाद में पता चला कि मेरे ताया के घर में पहले इल्म था, लेकिन उन्होंने ताया जानबूझकर मेरा रिश्ता कर दिया कि लोग बदनामी ज़माना थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि मेरे ताया ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और सब जानते-बूझते उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अपनों पे कोई एतबार तो किस चीज़ का नाम था, जब गैरों की बजाय अपना ही एतबार ना करे। फिर आप धोखा तो किसको दें? अब क्या हो सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं घर में अकेला रहता हूँ, मुझे लोगों पर एतबार करने का दिल नहीं करता। मेरी ज़िंदगी कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं। लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसको ऐसा करने का कोई हक़ नहीं था। अगर वो मेरी बीवी होती, तो ऐसा ना करती। या उसने कोई छोटी गलती की होती तो मैं माफ़ कर देता, लेकिन उसने ज़िंदगी से निकाल दिया।
اب میں پرسکون ہوں۔ مرد کے لیے بھی عورت کا وفا شعار ہونا ضروری ہے، لیکن جب خود عورت ہی بے وفائی کر دے تو پھر مرد کیا کر سکتا ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن جب اسے میں طلاق نہ دیتا، زبان سے طلاق دے کے الفاظ نہ کبھی نکلتے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی، بے شرمی سے بتایا اور چپ چاپ چلی گئی اور مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ کچھ عرصے بعد یہ بات موسم سرما شروع ہوا جب تو میرے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ تم شادی کر لو۔ تو اب میں کسی اور سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جاننے والوں کے ساتھ ملوایا، ان کی بیٹی کا شوہر انتقال کر چکا تھا، کم عمر تھی، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا میری بھی دوسری شادی ہے، اس کی بھی۔ ویسے بھی اسلام میں بیواؤں کو اور مطلقاؤں سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ان کی فیملی سے جا کر ملا اور انہیں اپنی پہلی بیوی کی حقیقت بتائی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں میرا سادگی سے نگمانہ سے نکاح ہو گیا۔ میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔ نگمانہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے، وہ بھی گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی اور کھانا وقت پر تیار کر کے دیتی تھی۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ شادی کے 1.5 سال بعد ہمارے گھر پیارا سا بیٹا ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میری ترقی بھی ہو گئی۔ میرے بیٹے روشان کی پیدائش پر مجھے ترقی ملی اور میں نے اوپر والی چھت پر 2 کمرے بنا لیے۔ اس وقت میں بہت ماشاءاللہ خوشحال ہوں، اور کبھی بھی ماضی کی طرف پیچھے مڑ کر جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی پہلی بیوی کے رویے پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔